Yes. So basically, we have the formulae for stationary waves. तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर कौन से फॉर्मूले हमने देखे, याद करो फटाफट। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला देखा? वी हैव सीन इट फॉर द स्ट्रिंग। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि स्टेशनरी वेव्स जो है वो बनते ही कैसे हैं। तो उसके लिए हमने देखा y1 is going to be the equation for the first wave which is going to form with the stationary wave। तो इसका इक्वेशन रहेगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहला इक्वेशन बनता है। दूसरा इक्वेशन जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं a sin, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होता है, साइन चेंज होता है बस। ओमेगा टी माइनस के एक्स के बदले ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा आ जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द y2, that is the equation of second wave, and then these two waves when combined together we get the equation of stationary wave, which is going to be y equal to y1 plus y2, and we obtain it to be equal to 2a into sine omega t into cos kx, where this whole chunk, that is 2a into cos of kx, this whole thing is called as r, that is called as amplitude of the resultant wave, stationary wave. So this y becomes actually equal to r into sine omega t. This becomes the equation of stationary wave, and in this stationary wave the amplitude of this stationary wave is given by this formula, r is equal to 2a into cos kx, and from this only we can get the condition for nodes and antinodes, and we can prove that the distance between any two nodes, okay, pi by 2. any two nodes or antinodes is actually lambda by 2. Remember, lambda by 2, and the distance between a node and antinode is going to be Lambda by 4. lambda by 4. Okay, so this is we have seen in the stationary waves. Now also we have seen in the stationary wave that the whenever the stationary waves are formed on the wire, then the fundamental frequency is given by the formula 1 upon 2l into root of t by m. उससे भी पहले हमने velocity का formula देखा था, याद है? तो velocity of the waves traveling along stretched string is given by v equal to root of t upon m, where t stands for the tension in the string and m stands for mass per unit length. Don't forget that. So this mass per unit length is written as mass of the wire upon the volume length of the wire, which can be written as pi r square into length of the wire upon L, so and into density. ठीक है, तो ये हमको मिलता है, जिसमें से L को अगर कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों तरफ से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से अगर L को कैंसिल कर देंगे तो हमको ये मिलेगा सिंपली, that is going to be equal to pi r square into rho. This is going to be the formula for mass per unit length, which can also be written to be equal to A into rho. Remember, A matlab area of cross section. Okay, so this is going to be the mass per unit length of a wire, and this is going to be the velocity of the stretched transverse waves traveling along stretched string, and this is going to be the fundamental frequency of vibration of the wire traveling along stretched string. And also in the second mode, तो second mode में frequency कितना होता है, n2, which is going to be equal to 2 times of n, n3 is going to be 3 times of n, and so on up to np in general is going to be actually p times of n, where p stands for number of modes or number of loops formed. Okay, that's all about the string. String के बारे में हमने इतना ही किया था। चलो ठीक है, next is about the open pipe. तो स्ट्रिंग के बाद ओपन पाइप के बारे में क्या बोल सकते हैं? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी v अपॉन 2l, करेक्ट है, v अपॉन 2l। लेकिन इसमें एक बार हमने देखा था कि v अपॉन 2l ये फॉर्मूला ओपन पाइप के लिए कभी यूज करने का, अगर उसका एंड करेक्शन बहुत छोटा हो या निग्लिजिबल हो, उसका डायमीटर जब छोटा होता है तभी ऐसा होता है कि उसका एंड करेक्शन निग्लिजिबल होता है।
otherwise we will have to use it as V upon 2L plus E. 2 times L plus 2E. ओके 2E, क्यों 2E? क्योंकि ओपन पाइप है ना वो, तो ओपन पाइप को पाइप, हाँ। दो ओपन एंड्स होते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे ओपन एंड आ गया तो वहां पे एंड करेक्शन आना ही आना है, तो इसलिए दो ओपन एंड होने की वजह से दो बार एंड करेक्शन ऐड होता है उसके अंदर, इसलिए वो ये बनता है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब एंड करेक्शन कंसिडर करना है, और ये बनता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब एंड करेक्शन कंसिडर नहीं करना है। और ओपन पाइप के केस में एक खास बात यह है कि उसके अंदर सारे जो हार्मोनिक्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से उसका जो सेकेंड मोड का जो फ्रीक्वेंसी होता है N2, we can say it is going to be actually 2 times of N. N3 is going to be 3 times of N. N4 is going to be 4 times of N, and so on up to infinity. तो अलग अलग ये फ्रीक्वेंसीज हमको मिलते हैं। एक बार हमको N पता चल जाता है तो उससे हम कोई भी उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं आराम से, जिसको ही हार्मोनिक कहा जाता है। और ओवरटोन किसको कहते हैं? तो ये देखो, ये जो 2N है इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, 3N को सेकेंड ओवरटोन बोल सकते हैं, 4N को थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज ऑलवेज इक्वल टू p plus 1 times of harmonic, or p plus 1 times of n, we can say, where n stands for fundamental frequency. This is going to be for the open pipe. Okay, next is about the closed pipe. तो अभी देखो ठीक से, क्लोज पाइप के लिए क्या होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, हमको पता है कि क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनता है V अपॉन 4L, अगर एंड करेक्शन कंसिडर नहीं करना है तो, लेकिन अगर एंड करेक्शन कंसिडर किया तो वो बनता है 4/4L plus E. यस, तो n इज इक्वल टू V अपॉन 4 टाइम्स L प्लस E। यहाँ पे सिंगल E आएगा क्योंकि क्लोज पाइप को एक ही ओपन एंड होता है, और जहाँ पे ओपन एंड होता है वहां ही एंड करेक्शन आता है, जहाँ पे क्लोज्ड एंड है वहां पे एंड करेक्शन तो आएगा ही नहीं, नो डाउट, इसलिए यहाँ पे एक ही बार एंड करेक्शन आएगा। ओके, अभी इसमें से क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हमको मिल गए, नो डाउट, इसमें से ये या तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर एंड करेक्शन इज इंपॉर्टेंट और नॉट, depending upon that. But once you get the fundamental frequency, how will you can get the different harmonics? तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर जो है ना, सेकेंड हार्मोनिक या फोर्थ हार्मोनिक, ऑल इवन हार्मोनिक्स आर जस्ट एब्सेंट, ठीक है ना। द क्लोज्ड पाइप कैन नेवर वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इवन मल्टीपल ऑफ fundamental frequency. It can vibrate only with the frequencies which are odd multiple of fundamental frequencies, and that's why we can say here the next higher frequency with which it can vibrate is just N3, which is going to be actually 3 times of N. The next higher frequency which it can vibrate is N5, which is 5 times of N, N7 and 9, N9, and so on up to odd multiple of N. ओके, एंड हियर द ये सब जो है तो हार्मोनिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, नो डाउट। तो हार्मोनिक्स में भी प्रेजेंट में भी एब्सेंट, बट ओवरटोन मतलब क्या, ये जो है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ये हो गया सेकेंड ओवरटोन, ये हो गया थर्ड ओवरटोन, एंड ये फोर्थ ओवरटोन, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एंड हेंस वी कैन से दैट इन जनरल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर pth ओवरटोन हियर in case of 2p plus 1 into n. yes, so pth overtone will be actually equal to 2p plus 1 into n, ये होगा frequency of pth overtone, which is also called as a 2p plus 1th harmonic, ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। This is for closed pipe. Next is about the resonance tube experiment. तो resonance tube experiment के अंदर हमने क्या देखा, एक जो पाइप लिया जाता है और उसके ऊपर उसके अंदर एक कंटेनर रखा जाता है जिसके अंदर वाटर होता है, और उसके अंदर एक पाइप इंसर्ट किया जाता है और उसको वाइब्रेट कराया जाता है अलग अलग लेंथ्स पे, और एक पर्टिकुलर लेंथ पे अगर वो वाइब्रेट करता है और एक ट्यूनिंग फोर्क एन इतने फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क के साथ अगर वो वाइब्रेट करता है रेजोनेंस में, तो पता चलता है कि यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी एन इज गिवन बाय
v upon 4 times of L plus E, and hence we get the velocity v of sound in air, which is going to be equal to 4n into L plus E. This is going to be the formula for finding the velocity of sound in air by using end correction method. But there is another method which is called as the elimination of end correction method, in which the same pipe is made to vibrate with the same tuning fork in the two different situations. In first of which the pipe vibrates in the fundamental mode, but in the next situation the pipe vibrates with another frequency which is almost about second mode. तो यहाँ पे ये सिचुएशन होता है और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे 3 लैम्बडा बाय 4 के बराबर ये L2 प्लस E बनता है। यहाँ पे जो एंटीनोड जो फॉर्म होता है थोड़ा बाहर आता है, और यहाँ पे ये जो L1 है, L1 और ये E एक्स्ट्रा जो लेंथ बनता है उसको हम E बोल सकते हैं, एंड करेक्शन उसको बोलते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, जिससे हमको दो इक्वेशंस मिलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमको मिलता है दैट इज लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू L1 plus E, and the second equation is obtained to be 3 lambda by 4, which is going to be equal to L2 plus E, no doubt. And then we can just solve these two equations so as to get lambda, which is going to be equal to 2 times of L2 minus L1, and we can solve use this to find out the velocity of sound in air, which is going to be 2 times n into L2 minus L1, and this formula actually doesn't require the finding of the elimination correction, end correction find करना इसमें जरूरी नहीं है, और इसकी वजह से ये elimination of end correction method कहलाता है, और उससे हम end correction निकाल भी सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, L2 minus 3 times of L1 upon 2, जो कि यही दो इक्वेशंस को E के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमको E का वैल्यू भी मिल जाता है आराम से। एंड इन ऑल दिस केसेस, ओके, ऑल दिस केसेस, ये सभी केसेस के अंदर, चाहे वो स्ट्रिंग, चाहे पाइप हो, चाहे कुछ भी हो, ओपन पाइप हो या क्लोज्ड पाइप हो, तो NL is always a constant, remember, which means that the frequency multiplied by length is always constant. So initial frequency multiplied by initial length is always going to be equal to the final frequency into final length, which is going to be equal to the third frequency into third length, and so on up to infinity like this. तो जितने भी frequencies और जितने भी lengths है, इन सब का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, अगर बाकी सब चीजें सेम हो तो, याद रखो से। और यार यही बात पाइप में भी लागू है, छोटा पाइप और सपोज ये बड़ा पाइप, दोनों अगर वाइब्रेट करते हैं और दोनों का लेंथ अगर अलग अलग है, तो पता चलता है कि जिसका लेंथ छोटा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसका लेंथ बड़ा है तो उसका फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, क्योंकि n और l का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, ये हम देख सकते हैं। एंड स्पेशली इन केस ऑफ द स्ट्रिंग वी हैव प्रूव्ड दैट, स्ट्रिंग के केस में हमने ये प्रूव किया था कि n इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ वी कीप लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट। तो अगर बाकी सब चीजें अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो n जो है वो रूट t के साथ प्रोपोर्शन में होता है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि n1 upon n2 is actually going to be equal to root of t1 upon t2, where t1 and t2 are the initial and final tensions in the string respectively. So this is all about, the second law of vibrating string, and the third law tells us simply n is inversely proportional to square root of mass per unit length of the string, which means that n into root m is going to be a constant, which can be written for numericals in this way: n1 root m1, which is equal to n2 into root m2, which is going to be equal to n3 into root m3, and so on like that up to infinity. So this is going to be the third law of vibrating string, remember. So all these are the things to be discussed in this chapter for the numericals. Now we'll start with numericals directly. So let us see the first numerical in this chapter, which is here. See, read this fast, तो ये हम पढ़ सकते हैं आराम से। देखो, a wave of frequency 500 Hz is traveling with the speed of 350 meter per second. What is the phase difference between the 2 points at a certain point
at times 1 millisecond apart. What will be the smallest distance between 2 points which are 45 degree out of phase at an instant of time? Okay, तो अभी देखो मैंने कल आपको दो फॉर्मूले लिख के दिए थे, अगर आपको याद होगा तो देखो ठीक से। फेज डिफरेंस दो रीजन से आता है किसी भी वेव के अंदर, बताया था। हाँ ये देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है, इसके अंदर हमने देखा था ऑलरेडी कि द फेज डिफरेंस इज ड्यू टू टू थिंग्स, टू रीजंस। वन इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू डिस्टेंस, and whenever the phase difference appears due to distance, then we have to use this formula here to find out the phase difference. But whenever the phase difference appears due to time instant, then we have to use this formula here. तो ये हमको यूज करना है फॉर्मूला जब टाइम गैप के हिसाब से फेज डिफरेंस आता है। तो दो फॉर्मूले हमारे पास है फेज डिफरेंस के, याद रखो ठीक से। एक तो ये डेल्टा दैट इज इक्वल टू 2 पाई x2 माइनस x1 अपॉन लैम्बडा, और दूसरा phase difference due to a time interval is going to be omega into delta t. Okay, now let us come back to the question here. तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमको ये दिया हुआ है कि सपोज एक वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये वेव है जो कि इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, this is the wave, and suppose that now the frequency of the wave is already given. See here, the frequency कितना दिया है वेव का, वो है 500 हर्ट्ज। ओके, एट द सेम टाइम स्पीड भी दिया है, speed of the wave is given to be 350 meter per second. Okay, and using this frequency and velocity we can find out lambda easily. wavelength इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन n होता है, जिससे हमको ये मिलेगा v जो कि 350 डिवाइडेड बाय n जो कि 500, जिससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा आराम से। ये देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, बाकी जो बचा तो उसको अगर 5 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 10 जा एंड 5 7 जा, 7 by 10, 7 by 10 becomes the wavelength of this wave. ओके मीटर, मीटर में चलो ठीक है, इसको ही हम 0.7 मीटर भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, हमने वेवलेंथ तो निकाल लिया। अच्छा अभी क्या करना है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट्स एट द सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स 1 मिलीसेकेंड अपार्ट। देखो ठीक से, एक सपोज पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ हम अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो यहाँ पे है, सपोज मान लो ये पार्टिकल के ऊपर हमने फोकस किया, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे वो यहाँ पे है, सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे है, और अभी जस्ट एक नेक्स्ट इंस्टेंट पे सपोज वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, समझो यहाँ पे चला जाता है। देखो ठीक से, उसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। सपोज वो नेक्स्ट इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पे चला गया, देखो ठीक से, तो अभी इन दोनों इंस्टेंट्स पे के बीच में टाइम गैप जो है, वो टाइम गैप कितना दिया है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं। डेल्टा टी टाइम गैप मतलब क्या है, डेल्टा टी जो कि दिया हुआ है, टाइम गैप इज इक्वल टू 1 मिलीसेकेंड, ये दिया हुआ है टाइम गैप। और अगर ये हम यूज करेंगे तो हमको फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, तो फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला, जो कि सिंपली हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें डेल्टा टी तो रेडीमेड दिया हुआ है, ये देखो 1 मिलीसेकेंड, जिसको हम यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे, सो दैट वी कैन गेट दिस ओमेगा। लेकिन ओमेगा कितना है, वो होता है 2 पाई इंटू एन इंटू डेल्टा टी एज इट इज, सो दैट वी कैन गेट दिस एज। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो हमको मिलेगा 2 पाई इंटू एन, एन मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, जो कि ये देखो 500 दिया हुआ इधर, तो वो हमको डालना है इधर, तो ये हम डाल देंगे, तो यहाँ पे 500 डाल दिया,
ठीक है, इनटू डेल्टा टी मतलब कितना है 1 मिली सेकेंड. रिमेंबर दिस मिली सेकेंड इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू seconds, so we can convert it as 10 raised to minus 3 seconds. Okay, so that we can put it here and get this as 10 raised to minus 3 seconds, so that we can get this as अच्छा अभी 2 into 500 कितना हो गया 1000, so we get this as 1000 मतलब 10 raised to 3, and here it is going to be pi as it is, and this is going to be equal to multiplied by 10 raised to minus 3, which is simply 10 raised to minus 3. तो अभी 10 raised to minus 3 और plus 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या simply pi. That is going to be the phase difference. Okay, so between the two particles, between the two instants which are differing in phase by in time by 10 raised to minus 3 seconds, the phase difference between those two positions will be pi. Okay, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास फेज डिफरेंस के लिए जो कि डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, जो है डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू एक्स, बराबर है. ये हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई इंटू x2 माइनस x1. इसको ही हम x भी रिप्लेस कर सकते हैं, देखो x मतलब डिस्टेंस एंड दैट इज डिवाइडेड बाय लैम्बडा. ओके, so now we can just solve this further and get this as, see here, so delta equal to 2 pi x by lambda. अगर ये यूज करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा 2 इंटू पाई इंटू एक्स. एक्स कितना है यहाँ पे, वही तो हमको दिया नहीं है, वो तो हमको निकालना है. देखो द डिस्टेंस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है. ओके, और जो फेज डिफरेंस है वो दिया है 45 डिग्री आउट ऑफ फेज करके बोला है. तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे एक बार तो हमको मिलेगा यहाँ पे 45, डेल्टा इज गिवन टू बी 45, करेक्ट है. तो डेल्टा के बदले अगर हम डाल देंगे 45, लेकिन याद रखो ठीक से कि डेल्टा जो है वो 45 डिग्री डिग्री में दिया हुआ है ना वो, बट डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो किस में आना चाहिए, रेडियन में आना चाहिए. तो उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 45 should be multiplied by pi by 180. Pi by 4. Yes, we can get this as pi by 4. And once we get this delta in terms of radian, we can just put it here in the formula and get this as pi by 4 is equal to 2 pi x upon lambda, where lambda is already given. See it here, we have found it out, 0.7 याद है, तो वो यहाँ पे डाल दो, तो ये बन गया हमारा 0.7. Okay, and if we simplify this further, then we can just cancel this pi out from both sides, so that we can be left with, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको, तो ये मिलेगा 1/4 which is going to be equal to 2x upon 0.7, जिसमें से हमको x निकालना है. तो उसके लिए सिंपली ये 0.7 को इधर लेके जाओ वो साइड में, तो वो बने, और 2 को नीचे लेके जाओ तो बनेगा 0.7 upon 4 into 2, which is going to be equal to x, which means that x is going to be equal to, तो x क्या बनेगा देखो ठीक से, तो x will actually be equal to 0.7 upon 8, which becomes equal to 0.0875, check, 0.875 centimeter only. Why centimeter? Just because, नहीं, हाँ, why centimeter? Centimeter नहीं, it will be actually in meter, sorry, this is in meter, but if we want to convert it into centimeter, then we'll have to multiply it by 100, so that will be actually x is equal to 0.0875 meter, means it is going to be 8.75 centimeter. That's it. So this is actually going to be the final answer, which is there here. Okay, chalo, next one, read this first question here.
Okay, sound wave in a certain fluid medium is reflected sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. Okay, the distance between two successive nodes is 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency. Okay, it's very easy. We can find it out. The sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. Okay, मतलब ये wave है और वो सपोज एक ऑब्स्टेकल के साथ रिफ्लेक्ट होके स्टेशनरी वेव फॉर्म करता है. चलो ठीक है. और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, अब देखो अगर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स दिया है तो ये क्या दिया है, वो तो लैम्बडा बाय 2 दिया है. हमको पता है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स क्या होता है, लैम्बडा बाय 2 होता है. तो वो दिया हुआ है 3.75 सेंटीमीटर. अगर लैम्बडा बाय 2 3.75 सेंटीमीटर है तो इससे हमको मिलेगा लैम्बडा जो कि 3.725 का डबल. कितना बनेगा वो बन गया 7.5. करेक्ट है क्या सेंटीमीटर. चेक 3.75 का डबल बराबर है 7.5 सेंटीमीटर. ओके, and once we get this lambda we can easily get the frequency because we have the velocity already. तो velocity तो हमारे पास already है, v is equal to 1500 meter per second. But don't forget to convert this centimeter into meter. तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 7.5 into 10⁻⁻2 आएगा यहाँ पे. तो ये 10⁻⁻2 मीटर में हो गया. और अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो बनेगा v डिवाइडेड बाय लैम्बडा. So that we can get this 1500 divided by 7.5 into 10⁻⁻2. How much it is? तो इसको हम लिख देंगे 15/7.5 into 10 का पावर सब करेक्ट करो. ये 10⁻² और ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2 तो 10⁻4 हो गया. जिसको हम लिख सकते हैं आराम से क्योंकि 7.5 का डबल ही तो होता है ना ये 15. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 into 10⁻4 hertz which is going to be equal to 20 kilohertz. ठीक है, क्योंकि ये 10⁻³ मतलब किलो होता है और उसमें से एक जीरो बचेगा वो 20 में डाल दिया, हो गया 20 kilohertz. ओके, नेक्स्ट वन इज, see this question is copied in the next page, 12th one. Okay, तो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट. Two sources of sound are separated by a distance 4 meter. They both emit sound with the same amplitude and frequency, but they are 180 degree out of phase. At what points between the two sources will the sound intensity be maximum? Okay, तो देखो ठीक से कैसा है कि ये एक सोर्स है. ओके, ये इसको हम बोलेंगे A. ओके, फर्स्ट सोर्स. और सेकेंड सोर्स जो है वो उससे 4 मीटर डिस्टेंस पे है. देखो ठीक से, ये सपोज सोर्स A है और यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस दूर एक दूसरा सोर्स है यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं B. ओके, दिस इज गोइंग टू बी B. अभी इसमें से भी वेव्स निकल रहे हैं और इसमें से भी ऑलरेडी वेव्स निकल रहे हैं. ठीक है, एंड दे बोथ ऑफ देम इमिट द साउंड विथ द सेम एम्पलीट्यूड. तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम है बट फ्रीक्वेंसी एंड हाँ फ्रीक्वेंसी भी सेम है. ओनली दे आर आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, ऐसा रहेगा. तो अभी देखो अगर ये दोनों आउट ऑफ फेज है और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो इनका ये कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा बताओ. देखो ठीक से, इस वेव का इक्वेशन कैसे बनेगा और इस वेव का इक्वेशन कैसे बनेगा. चलो ठीक है, इक्वेशन यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर बिना इक्वेशन बनाए अगर सॉल्व करना है तो देखो क्या होगा. तो उसके लिए सबसे पहली बात कि इनका फ्रीक्वेंसी तो हमको दिया हुआ है 330 हर्ट्ज, नो डाउट. ओके, और
अच्छा, what will be the इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, वो हमको ढूंढना है। ठीक है, see can you construct the equations of both of these waves? First of all take this as a origin, या ऐसा करो कि जो ये है इसको ओरिजिन दे लो, ए पॉइंट को ओरिजिन दे लो, ये सपोज हमारा ओरिजिन है। तो ये वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अच्छा अभी इस दूसरे वाले वेव का इक्वेशन बना सकते हैं आराम से, y2 कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस 4 मीटर है, बराबर 4 मीटर, और इसलिए ये 4 मीटर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एडिशन में आ जाएगा क्योंकि वहां से ये वेव स्टार्ट करने वाला है। तो इसलिए उसका इक्वेशन बनेगा 4, और एक्चुअली द वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन हियर, ये डायरेक्शन में वो वेव ट्रेवल कर रहा है। तो उसके कारण उसका जो इक्वेशन है वो बनेगा y2 इज इक्वल टू 4 माइनस a sin omega t minus kx. But one more thing is given here, that is that that wave is out 180 degree out of phase with respect to the first wave. तो फिर यहाँ पे प्लस पाई भी आएगा, तो ये उसका इक्वेशन बनेगा। चलो ठीक है, बट हमको पता है कि दो वेव्स का इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर कोइंसाइड होता है, या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर कोइंसाइड होता है। तो ये हमारा कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, दोनों का वेलोसिटी अगर सपोज सेम है और उसको अगर v मान लेते हैं, तो इस पहले वाले वेव का वेवलेंथ कितना होगा, चलो दोनों का वेवलेंथ तो सेम ही होगा, कितना होगा बताओ, वेवलेंथ विल एक्चुअली बी इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन हियर 330। ओके, तो v बाय 330 ये हो गया वेवलेंथ। ओके, और ये 4 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, और कुछ तो भी दिया जाना चाहिए था, उन्होंने वेलोसिटी एक्चुअली देना चाहिए था, नहीं तो वेलोसिटी साउंड का जो है वो 330 पकड़ ले बस, बिल्कुल फिर हो जाएगा आराम से। देखो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमको पता है ऑलरेडी कि इट इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 330 डिवाइड बाय 330 जो बनेगा 1 मीटर। तो इसका मतलब वेवलेंथ ही 1 मीटर है। अच्छा, तो फिर अभी यहाँ पे देखो, अगर 1 मीटर का वेवलेंथ है
तो यहाँ पे अभी 4 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऐसे केस में ठीक है, यहाँ से अगर वेव स्टार्ट करता है तो कौन से पॉइंट्स सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज में रहने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास कि फेज डिफरेंस मस्ट बी आइदर 0 और 2 पाई। तो चेक करो यहाँ पे कौन से दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई रहेगा। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, ये ए सोर्स है सपोज, और यहाँ पे ये बी सोर्स है, और इसमें से समझो एक पल्स क्रिएट किया। तो ये पल्स जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल करेगा आगे, और उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हमारे पास है 1 मीटर। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे यहाँ पे 1 मीटर एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसका, एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक ऐसा। तो इसका मतलब 4 वेव्स यहाँ पे बैठ जाएंगे क्योंकि उसका वेवलेंथ ही 1 मीटर है, तो इसलिए ये वेव जो है वो इस तरह से जाएगा आगे। ओके, बट अभी अगर सपोज ये बी जो है वो बी भी सोर्स बन रहा है, तो लेकिन वो जो वेव्स इमिट करेगा तो वो क्रेस्ट नहीं करेगा, वो ट्रफ करेगा। तो उसकी वजह से उसमें से जो क्योंकि उसका 180 डिग्री अपोजिट दिया हुआ है ना उन्होंने, देखो ठीक से, इट्स फेज इज गिवन टू बी 180 डिग्री अपोजिट। तो बी का जो फेज है वो 180 डिग्री अपोजिट रहेगा। इसका मतलब जब ये क्रस्ट पैदा करेगा तो ये ट्रफ पैदा करेगा। तो ये सपोज इसका ट्रफ है, अभी बी का जो सब वेव है वो हम ऐसे दिखाएंगे, रेड कलर से दिखाएंगे। तो ये देखो ये उसका ट्रफ पैदा हो गया, उसका भी वेवलेंथ 1 मीटर ही है। तो यहाँ पे ये उसका वेव आ गया, एक वेव कंप्लीट हो गया, यहाँ पे दूसरा वेव, यहाँ पे तीसरा वेव, और यहाँ पे चौथा वेव कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये वेव्स आगे बढ़ेंगे अच्छा पहले ये सोचो कि अगर सपोज ये दो अगर पार्टिकल्स है और दोनों अगर सोर्सेस बन रहे हैं, और अगर मान लो कि ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली अगर वेव्स इमिट करना चालू करते हैं और अगर वो सेम फेज में होते तो क्या होता था बताओ। तो इसमें से निकलने वाला वेव और इसमें से निकलने वाला वेव यहाँ पे जब पहुंचता, ठीक है, फेज का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स अपॉन लैम्बडा। ओके, ये हो गया इस पहले वाले फेज वेव का फेज का इक्वेशन। और दूसरे वाले वेव के फेज का इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा डैश विच इज पाई प्लस
कि पाई रेडियन से वो आगे रहेगा, तो पाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डिस्टेंस। सपोज टू बी 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो 4 है, ये टोटल डिस्टेंस 4 है, और उसमें से ये जो डिस्टेंस अगर हमने काट लिया तो वो बनेगा। ओके देखो ठीक से, अगर ये पूरा लाइन है और यहाँ पे एक पहला सोर्स है ए, उसको हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा सोर्स है बी सपोज है, और अभी इसमें से ए में से जो वेव निकल रहा है तो वो इस तरह से ट्रेवल करेगा, उसका जो फेज रहेगा, तो फेज डेल्टा उसको हम बोल सकते हैं, वो एक्स पे डिपेंड करेगा। अगर सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं पी, जिसको हम नाम दे सकते हैं सपोज पी, ओके, जो कि बीच में है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में नहीं, किधर भी हो सकता है वो पॉइंट पी, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ए से हम कंसिडर करते हैं सपोज एक्स, ठीक है। तो इस एक्स डिस्टेंस पे इसका फेज कितना होगा, इस ए में से निकलने वाले वेव्स का जो फेज है वो इस फॉर्मूला से दिया जाएगा, तो वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इसी पॉइंट पे जब इसमें से निकलने वाला वेव जब पहुंचेगा तो उसका फेज कितना होगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली 4 माइनस एक्स होगा, उसके ऊपर उसका फेज डिपेंड करेगा, और इसलिए उसका जो फेज रहेगा वो रहेगा 2 पाई इंटू 4 माइनस एक्स, नो डाउट। लेकिन ऑलरेडी जब वो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के टाइम ही उसका फेज आउट ऑफ फेज है, मतलब उसका फेज जो है वो 180 डिग्री अपोजिट है। इसका मतलब फिर इसका जो फेज है डेल्टा डैश, उसको हम बोल सकते हैं, इट विल बी एक्चुअली पाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 4 माइनस एक्स। एंड नाउ द नेट फेज ऑफ दिस पार्टिकल एट पी विल एक्चुअली बी, तो नेट फेज कितना होगा इस पार्टिकल का, तो उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा नेट, नहीं सॉरी, फेज डिफरेंस कितना होगा इस पार्टिकल के ऊपर, जब ये दोनों वेव्स यहाँ पे आके मिलेंगे तो उस समय इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो उसको बोल सकते हैं डेल्टा डैश माइनस डेल्टा। तो वो हम लिखेंगे इस तरह से, तो डेल्टा डैश माइनस डेल्टा कितना बनेगा वो, तो बनेगा पाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, so that we can get this simply the phase difference between these two to be equal to pi plus, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो बनेगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 4 माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा which just cancels, sorry, minus 2 pi x by lambda minus 2 pi x by lambda again. So what will be the total phase? Pi plus 8 pi by lambda, अच्छा लैम्डा तो 1 ही है ना, तो 8 पाई ही लिख देंगे इसको, तो पाई प्लस 8 पाई सिंपली माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, मतलब वो बन गया 4 पाई एक्स अपॉन lambda, but lambda is already 1, so you can replace it by that, and this is going to be the phase difference between the two particles. तो अभी ये फेज डिफरेंस जो है वो हमको एक्सपेक्टेड कितना है, या तो 0, या तो पाई 2 पाई, या तो 4 पाई। तो इसलिए अभी देखो ये फेज डिफरेंस 0 कभी होगा, अच्छा इसको पहले लिख देंगे डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 4 पाई एक्स, ओके, क्योंकि लैम्डा इज 1 ऑलरेडी, तो ये हमको मिल गया फेज डिफरेंस, ठीक है। व्हेन दिस फेज डिफरेंस कैन बी इक्वल टू 0,
तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, देखो डेल्टा डेल्टा का वैल्यू 0 बनने के लिए 0 इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 4 पाई एक्स बनना पड़ेगा, जिसका मतलब 4 पाई एक्स को 9 पाई के बराबर बनना पड़ेगा, जिसका मतलब पाई पाई को अगर कैंसिल कर दो तो x को 9/4 के बराबर बनना पड़ेगा। 9/4 मतलब कितना होता है 2.25 ओके मीटर, इतना बनना पड़ेगा 2.25 मीटर। ये पहला वैल्यू हो गया। अभी दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि डेल्टा 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 कैन बी 2 पाई ऑल्सो। ये भी कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जबकि हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा साउंड का, which is possible only when 2 pi is going to be actually equal to, इसी इक्वेशन में डालना है, ये देखो ये वाला, इसी इक्वेशन के अंदर हमको डेल्टा डेल्टा के बदले 2 पाई डालना है, तो 2 पाई becomes actually equal to 9 pi minus 4 pi x, so that we can just shuffle these terms and get this as 4 pi x is equal to 9 pi minus 2 pi, मतलब ही 7 pi, which gives x is equal to pi pi cancel 7/4, which is going to be equal to 1.75, करेक्ट है 1.75 मीटर। ओके, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, सेम कंडीशन में तीसरा पॉसिबिलिटी है 2 पाई के बदले 4 पाई आएगा। तो अगर डेल्टा डेल्टा के बदले अगर हमने 4 पाई डाल दिया तो क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा 4 पाई is equal to 9 pi minus 4 pi x, so that we get this 4 pi x is equal to 9 pi minus 4 pi, which is going to be 5 pi. Pi pi cancel and we are left with x is equal to 5/4. That means x must be equal to 1.25 मीटर। और चौथा कंडीशन जो है वो भी हमको मिलने वाला है, जो रहेगा एक्चुअली सेम इक्वेशन में हमको अभी 6 पाई डालना है, 6 पाई। तो डेल्टा डेल्टा के बदले अगर 6 पाई डाल देते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 6 पाई must be actually equal to 9 pi minus 4 pi into x, right? So that we get that 4 pi x is going to be equal to 9 pi minus 6 pi, which is 3 pi, and hence we get that pi pi cancel, x is going to be equal to 3/4, which means x must be equal to 0.75 मीटर। ये एक डिस्टेंस हो गया। और लास्ट इज डेल्टा डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 8 पाई ऑल्सो। तो अगर इस डेल्टा डेल्टा के बदले अगर हमने 8 पाई डाल दिया तो सेम इक्वेशन यूज करो ये वाला, तो उसके अंदर अगर डेल्टा डेल्टा के बदले 8 पाई डालेंगे तो 8 पाई बिकम्स इक्वल टू 9 पाई minus 4 pi x, which gives 4 pi x is equal to simply pi, means x must be equal to pi/4, and then we can get this, sorry, 1/4, pi cancel and x becomes actually equal to 1/4, which is going to be equal to 0.25 मीटर। बट अभी नेक्स्ट कंडीशन जो है वो इस तरह से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि डेल्टा डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 10 पाई, but this will not give us any result, because if we equate this 10 pi is equal to 9 pi minus 4 pi x, then 4 pi x happens to be equal to negative, तो वो माइनस माइनस बन जाता है, माइनस पाई बनता है, जिससे हमको x का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव, which we don't want, because the question में क्या पूछा है हमको, what are the distances of the points between the two sources, between, तो वो between वाले ही हमको निकालने हैं, इसलिए हमको ये लास्ट वाला आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली देखो कौन से हमको हमारे पास इक्वेशंस नंबर्स आ रहे हैं, कौन से डिस्टेंसेस आ रहे हैं, तो देखो ठीक से 5 डिस्टेंसेस हमको मिल रहे हैं। पहला 2.25 मीटर, दूसरा 1.75 मीटर, तीसरा 1.25 मीटर, चौथा 0.75 मीटर, और पांचवा ये
0.25 meter. If we plot all these distances on a line, we can understand. So see here, if this is a line, ये suppose line है, और उसके ऊपर अगर हम इधर से अगर सभी डिस्टेंसेस अगर मार्क करते हैं, तो ये सपोज 0, सो सबसे पहले क्या मिलेगा हमको 0.25 मिलेगा, देखो तो ये हो गया हमारा 0.25. ओके, दूसरा डिस्टेंस है ये 0.75, तो ये डिस्टेंस बन गया 0.75. ओके, तीसरा बन गया ये 1.25. ओके, 1.25 इधर है. फिर नेक्स्ट इज 1.75, तो दिस इज 1.75, and next is 2.25, so this is 2.25. ओके, तो ये सारे डिस्टेंसेस हमको मिल रहे हैं. तो इन डिस्टेंसेस पे क्या होगा, मैक्सिमम पार्टिकल्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलेगा. जस्ट चेक करो. जीरो पॉइंट टू फाइव, 0.75, 1.25, 1.75 फ्रॉम द पॉइंट एट द सेंटर. अच्छा, सेंट्रल पॉइंट से उन्होंने मेजर किया है. तो ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे ठीक से, तो सेंटर से कितना है डिस्टेंसेस, हेलो सर, नाही अजून 6:30 आहे. मग कितीला आहे? नाही नाही. ओके, तो अगर देखेंगे ठीक से, तो सेंटर से, सेंटर किधर है, ये देखो, ये 2 मतलब सेंटर है, बराबर. ये 2 हमारा सेंटर है, 2 पॉइंट पे. तो इसके इस तरफ कितना डिस्टेंस है, 0.25, नहीं 0.25, हाँ 0.25 ये. और इस तरफ ये डिस्टेंस कितना है, 0.25, फिर से करेक्ट है. ये 0.75, इसका 1.25, इसका कितना होगा 1.75, करेक्ट है. वही डिस्टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है. सिर्फ उन्होंने सेंटर से मेजर किए हैं, तो इसलिए आंसर अलग दिख रहा है, टेक्निकली अलग है आंसर, बाकी सेम ही है, देखो ठीक से, ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज two sound waves are travel at a speed 330 meter per second if their frequencies are also identical. Frequencies are identical and equal to 540 hertz. What will be the phase difference between the waves at points 3.5 meter from one source and 3 meter from the other if the sources are in same phase? Okay, तो देखो अभी ठीक से, टू साउंड वेव्स ट्रेवल, मतलब 2 साउंड वेव्स है जो 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, उनके फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, ठीक है. तो वेवलेंथ भी इक्वल होंगे ऑब्वियसली. एंड व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट्स 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर सोर्स. मतलब देखो, सपोज ये एक सोर्स है ए और ये दूसरा सोर्स है बी. तो इधर से 3.5 मीटर डिस्टेंस पे जो एक पॉइंट है उसमें, तो ये डिस्टेंस सपोज 3.5 मीटर है मान लो, ये जो डिस्टेंस है वो है 3.5. ओके, और बी से एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 3 मीटर का, 3 मीटर. ओके, तो ये सपोज बी में से निकलने वाले जो वेव्स है, इसका 3 मीटर वाला डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, ये सपोज ये पॉइंट है जो 3 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा. तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो हमको पूछा है.
और ये बोला है कि ये दोनों जो सोर्सेस है वो सेम फेज में है। तो सेम फेज में होने के कारण क्या फायदा होगा कि इसका जो फॉर्मूला है फेज का, तो वो बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू 2πx/λ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू 2πx1/λ। लैम्डा इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ। एंड डेल्टा 2 के लिए क्या यूज करेंगे, देखो डेल्टा 2 इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 2πx2 divided by lambda simply, and we want to find out the phase difference, right? हमको phase difference निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो उसमें अभी अच्छा किसका फेज ज्यादा होगा, सीधी बात है जो दूर वाला पॉइंट है उसका फेज ज्यादा होगा। तो इसलिए डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हमको करना होगा, जो बनेगा 2π/x1/λ minus 2πx2/λ, and hence we get this as 2π/λ as it is in the bracket, and we get x1 minus x2 as a final, correct है? And then we can be able to solve this further and get this as, अच्छा x1 कितना है 3.5, x2 is 3 only, so what we get here is in the next step is so 2π/λ into 3.5 minus 3 which is going to be 2π/λ into 0.5, correct है? तो देखो 2π/λ into 0.5 और 2 into 0.5 क्या बनता है 1, तो इसलिए वो फाइनली बन रहा है हमारा π/λ। बट लैम्बडा कितना है वो हम निकाल सकते हैं आराम से इधर, क्योंकि वेलोसिटी भी दिया है और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी दिया है, तो नो डाउट लैम्बडा कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू v/n। so v is already 330 and n is already 540, so 0 0 cancel and we'll be left with 33/54. okay, this 33/54 will be replaced here, so that we get this final value, that is the phase difference between the two points will be actually π/λ ना, तो π/λ which is 33/54। अच्छा इसको भी कैंसिल करो 3 से, तो 3 11s are and here it is 3 18s are, so what we get here is in the next step, तो ये π/λ और लैम्बडा का मतलब है 11/18, तो ये 11/18 डाल दिया इधर, तो वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो बनेगा 18π/11। दिस इज गोइंग टू बी द फेज डिफरेंस। चेक, अगर हमको वो डेसिमल में निकालना है, अच्छा पाई के फॉर्म में ही रखना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे सिर्फ 18/11 जो है वो कर दो फटाफट, जस्ट 18/11 कितना आता है, देखो एक बार ठीक, 1.63 1.6 या 3 के आगे क्या है 1.36 हाँ, तो राउंड ऑफ करके वो क्या बनेगा 1.64 पाई। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ओके चलो ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चंस तक हम अभी यहाँ पे आज के लिए करेंगे, तो 14th के आगे के जो क्वेश्चंस है वो कल करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, लेकिन इसमें से जो तुमको आते हैं वो तो सॉल्व करके रखो, कुछ कुछ तो बहुत इजी है, तो जैसे हमने अभी भी किया 2-3 क्वेश्चंस जो बहुत इजी थे वो तुम भी कर सकते थे खुद, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड थे वो। सिंपली वेलोसिटी दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, वेवलेंथ निकालना था, या वेवलेंथ दिया था, वेलोसिटी दिया था, फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो उस टाइप के तो कर दो फटाफट, ठीक है? सो बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो ये लेक्चर में यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय। Thank you, sir.